Good afternoon, everybody. So today I will start with the types of mountains, types of plains, types of plateaus, and after completing this all, I will start with a new topic, oceanography. Okay. So let us start. I thought no, still mountain and their types, continental plateaus. What you were saying? No. Mountains and their types. Have you forgotten? Cold mountains, block mountains, volcanic mountains, stratigraphy. Yeah. Then afterward that I will go to the plateaus. Then afterward plains, and after plains I will go to the oceanography. Yeah. So oceanography is small chapter. It will end in one lecture. Okay. Let me start now. Okay. Mountains 27% in the world है. ठीक है. ये तो मैंने पढ़ा दिया, इसका एक बार रिवीजन कर लो. ठीक है. It is the elevated portion of the earth crust exposed bedrock. ठीक है. What is the fold mountain? Mainly which type of rock is found in the fold mountain? Metamorphic, sedimentary rocks. Mainly sedimentary rocks are found in the fold mountains, formed due to the force of compression. Okay. Then there is, but important thing is that the layer should be soft. If the layer is hard, then it will be break down, and there is no fault in that hard layer. So to form a fold mountain, there the layer should be soft and the pressure should be in a uniform manner. Okay. So it is the endogenetic or external or internal forces. Okay. So this is the fold mountain. So what is the upper part? This upper one is anticline. And down one is syncline. Okay. What are the example of the fold mountain? Himalaya in Asia, Alpha in Europe, Rockies in North America, and Andes in South America. Okay. What are the block? Block mountain. Block mountain are also from which force it come from? Tensional force, na? Tensional or fault. Okay. It is also a endogenetic process. Okay. Downlift and upliftment of the land between the two parallel faults. Okay. As I thought first, it is, what is this? Upper one is footwall, and down one is hanging wall. Okay. When this, what is this? This is a normal fall. And how? What is the reverse? Reverse is hanging wall will go up and footwall will come down. Okay. So like that will be the block mountain will be formed. One time see the diagram of the block mountains. Which part is this? Come on. Earth. And this one is this one is graben. Down one is graben, up one is horse. Okay. Up going, down going. Well, what is this? Football. This one is hanging. This one is football. So this how the block mountain will be formed. Okay. What is the volcanic mountain? As you know, whatever the material comes from the lava, when the lava come out, it is known as the magma. Then what of the reverse?
Yeah. Whenever the magma come out, then it will form the lava, and whatever material brought or whatever the debris brought from the underground, and it is thrown up, then it is forming. Then it will be the formation of the volcanic mountains. Okay. For example, Mount Fuji in Japan. Residual mountain. What I've taught you all. What is the residual mountain? It will be formed due to the weathering of rock. I've taught you now. It will be formed due to the weathering of rock. Suppose it is some type of the landform. Okay. It is a one type of the landform. Okay. When the weathering effect on this, then suppose this portion of that landform is hard. Okay. And this here is soft and this is soft. Then the weathering will, where the weathering effect more, weathering कहाँ पर ज्यादा इफेक्ट करेगा, सॉफ्ट पे ज्यादा इफेक्ट करेगा, तो वो जल्दी इसे इरोड करेगा, इसे ये तोड़ेगा, सॉरी, इसे ये वेदरिंग करेगा, और जब वेदरिंग होगा, जब वो पत्थर का जब चूरा चूरा हो जाएगा, when that rock will be broken and it will be converted into the small particle, then the wind will take it away, it gets eroded, and here same the part will be, so this part will be, see, look at the mountain. Okay, residual mountain. What is the best example of these are the Nilgiris, Vindhyas, Satpura, and also Aravallis. Aravallis are also a residual type of mountains. Okay. Himalaya, which type of cold mountain? Okay. And this Aravalli, residual type of mountain. Okay. Okay. Plateau. Okay. High plain or a tableland, elevated area with a more or less level land on its top. ठीक है. High plain रहेगा, एक plain area रहेगा, लेकिन वो high रहेगा. ठीक है. यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ भी mountain है, लेकिन एक plain area. ठीक है. पठार बोलते हैं ना, पठार is known as the main plateau, Tibet plateau, Tibetan plateau. Okay, so it is like that. It is a high landform, but there is no peak. It will be the plain. Upward, it will be the plain. Okay, so this type of landform is known as the plateau. Okay. What are their classifications? Let me teach about the classification. Classification for plateaus. Intermontane plateaus. Okay, intermontane means it is between the mountain. As the name suggests, intermontane plateau. Okay, whenever the word comes intermontane plateau, it means it will be between the mountain. Okay, either it will be your mountain, either this side, and in between their mountain there will be the a plain land. Okay, above that. Okay, it will be the plain land. Interplateau is Tibet plateau. Yeah. Plateau of Tibet is the best example of intermontane plateau. Okay, so intermontane plateau are the highest in the world. Intermontane plateau is the highest plateau in the world. Plateau which are bordering the mountain range or are partly or fully enclosed within them are known as the intermontane plateau. Okay, या तो वो mountain पास करो स्पीड, ठीक है. ओके, या तो वो जो प्लेट्यू रहेगा वो सब साइड से वो माउंटेन से घिरा रहेगा, या
वो पार्टली मतलब वो थोड़ा सा वो माउंटेन से घिरा रहेगा, तो उसको बोलेंगे इंटर माउंटेन प्लेट्यू। ठीक है, जब ये आएगा इंटर मतलब इट इज बिटवीन द माउंटेन। बेस्ट एग्जांपल इज प्लेट्यू ऑफ तिब्बत। सेकंड वन इज पिडमॉन्ट। हाँ क्यों? नो नो नो, माउंटेन तभी तो हुआ था, माउंटेन इन द टाइप। अब मैं सिखा रहा हूँ ये पिडमॉन्ट प्लेट्यू। पिडमॉन्ट मतलब ये जब भी आएगा, whenever the words come, piedmont means at the foot of mountain, at the foot of mountain. I will say situation, situated at the foot of mountain and is locked on the other side by the plain or a sea. It is a mountain. Suppose it is a mountain. Plateau will be found here. Okay, this is the plateau, and this here it will be sea or plain. Piedmont Plateau means it is the mountain. Okay, plateau is found at the foot of mountain, and from the next side it will be covered from sea or plain. समझ में आया? Okay. sea और plain, sea नहीं तो plain। ठीक है, इस साइड में माउंटेन, माउंटेन के फुट नीचे आएगा प्लेट्यू। एट द अपना वेस्टर्न घाट जो है वैसे ही उतर के प्लेट्यू होके फिर समुद्र चालू होता है। नहीं, इसका बेस्ट एग्जांपल है मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। ठीक है, बट प्लेन्स तो है ना, प्लेन्स है ना, so I'm not saying that it is important to be the sea. प्लेन भी चलेगा, वही तो मैं बोल रहा हूँ। इट इज द माउंटेन, माउंटेन के फुट के नीचे प्लेट्यू आ गया, इसको और ये यहाँ पर एनक्लोज होना चाहिए सी से या प्लेन से, उसको बोलते हैं पिडमॉन्ट प्लेट्यू। तो बेस्ट एग्जांपल इज मालवा प्लेट्यू। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा? इंटर माउंटेन और प्लेट्यू का एग्जांपल क्या है? व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इंटर माउंटेनी प्लेट्यू? What is the example of intermontane plateau? Example of huh? ध्यान किधर? क्लास में ही है ना? Best example of intermontane plateau is plateau of Tibet. Okay. Best example of Piedmont plateau is Malwa plateau. Okay. Continental नाम से क्या समझ में आ रहा है? It is formed by the basic और base इसका कौन देगा? तो लावा देगा। Base it will be come from the lava, and you have told right, plateau of Maharashtra means Deccan plateau, formed either by the extensive continental upliftment, continental अगर continent uplift हो जाएगा उससे, और by the spread of the horizontal basis lava sheet completely covering the original topography.
टोपोग्राफी, ओके। या तो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट जो है वो अपलिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। या तो जब लावा जब बाहर आएगा, जो वहां का ओरिजिनल टोपोग्राफी है उसको वो कवर कर देगा, वहां पर वो शीट बना देगा, तब जाके वहां पर फॉर्म होगा कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। समझ में आ रहा है कैसे फॉर्म होगा? दो टाइप से, या तो जब कॉन्टिनेंट के प्लेट अपलिफ्ट हो जाएगा, या तो जब लावा जब बाहर निकलेगा और वो जो अगर टॉपोग्राफी और ओरिजिनल टॉपोग्राफी उसके ऊपर वो शीट बना देगा, अपना वो एक शीट बना देगा और उससे फॉर्म होगा कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। एंड बेस्ट एग्जांपल इज प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र मींस डेक्कन प्लेट्यू, प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल कौन सा है इसका? कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू का महाराष्ट्र या डेक्कन ट्रैप? डेक्कन ट्रैप नहीं है, डेक्कन ट्रैप मींस और डेक्कन प्लेट्यू मींस दैट इज ओनली अ प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र। डेक्कन ट्रैप या डेक्कन प्लेट्यू को ही बोलते हैं प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज कर लो, इंटर माउंटेन प्लेट्यू का बेस्ट एग्जांपल क्या है? टिबेटियन प्लेट्यू, टिबेटियन प्लेट्यू, पेडी पेडी माउंट का हाँ मालवा प्लेट्यू, से अगेन मालवा प्लेट्यू। एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू का डेक्कन ट्रैप और प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र। fourth one is very easy, it is a volcanic plateaus produced by only a volcanic activity, ठीक है। वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर कॉन्टिनेंट जब ऊपर आ रहे थे तब वहां से लावा निकल रहा था और वो पूरा शीट को कवर कर रहा था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लावा ही निकले, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ लावा का ही काम है बस। कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू अपलिफ्टमेंट हुआ तो फिर भी उसको कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू बोलते हैं। मतलब दोनों हाँ ऊपर भी एक ही है, ठीक है। या तो वो ऊपर आना चाहिए, या तो वो ऊपर आने के समय वहां से अगर अपलिफ्टमेंट हुआ लावा का और उसने पूरा वो टोपोग्राफी को अगर उसने कवर कर लिया, एक शीट बना दिया, तो उसको बोलेंगे कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। और यहाँ पर सिर्फ लावा का ही काम है और दूसरे का काम यहाँ पर नहीं है। तो लावा प्लेट्यू फॉर्म बाय द हाई फ्लूइड बेसाल्टिक, क्या मैंने बोला था, जब भी अंदर से जो भी मटेरियल जब हीट होगा और जब वो बाहर आएगा तो क्या निकलेगा? बेसल्ट मटेरियल निकलेगा, ठीक है। जब भी हीट होकर बाहर आएगा तो बेसल्ट मटेरियल निकलेगा। और बेसल्ट मटेरियल ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं? ओशियनिक क्रस्ट में। ओशियनिक क्रस्ट में ज्यादा बेसल्टिक मटेरियल पाए जाते हैं, ठीक है। तो फिर डेक्कन प्लेट्यू भी इसका एग्जांपल होगा। किसका? डेक्कन प्लेट्यू पूरा बेसाल्टिक ही है डेक्कन प्लेट्यू, लेकिन उसमें कॉन्टिनेंटल अपलिफ्टमेंट भी हुआ, नीचे से होके उसमें कॉन्टिनेंटल अपलिफ्टमेंट भी हुआ है, वहां पर कॉन्टिनेंट कुछ ऊपर उठे भी हैं, ठीक है। उन लोग भी वहां पर एक्सपोज हुए, कॉन्टिनेंट भी वहां पर एक्सपोज हुए और फिर वहां पर लावा से उसको पूरा कवर अप किया गया, ठीक है। लावा प्लेट्यू इज फॉर्म्ड बाय द हाई फ्लूइड basaltic lava during the numerous successive eruption through the numerous vents without a violent explosion। यहाँ पर violent explosion नहीं होता है, numerous मतलब बहुत टाइम वो लावा बाहर आके यहाँ पर violent लावा नहीं आता है, इसके लिए वो लावा ज्यादा फैलता है और जब वो ज्यादा लावा फैलेगा तब वो ज्यादा शीट बनाएगा और उसी शीट को बोलते हैं वोल्केनिक प्लेट्यू। It is the plateau area that have been severely eroded so that the relief is sharp, sometimes appear as the mountain। यहाँ पर भी कौन काम करेगा? तो कौन काम करेगा? पहले वेदरिंग यहाँ पर काम करेगा, बाद में उसको इरोड करेगा, इरोड करने के बाद में वो उसको बना देगा, प्लेट्यू बना देगा, ठीक है। यहाँ पर घूम फिर के सबका काम वही आएगा। या तो पहला काम कौन करेगा? पहला काम या तो कॉन्टिनेंट करेगा,
फिर बाद में काम करेगा लावा, फिर बाद में काम करेगा वेदरिंग, वेदरिंग के बाद में इरोजन, ठीक है। तो उसको ही बोलते हैं डिस डाइसेक्ट, दो पार्ट बनेगा, डाइसेक्टिव दो प्लेटिंग। dissect। वही तो, वो पहले उसे तोड़ेगा, तोड़ के उसका जो भी मटेरियल है वो इरोड हो जाएगा, बाद में वो डाइसेक्ट प्लेटिव वो बना देगा। समझ में आ रहा है? एग्जांपल तो यहाँ पर इतना कुछ दिया नहीं, ठीक है। तो व्हाट इज द, कैसे बनता है ये, एक्सप्लेन भी जानने। हम्म, ईशा कैसे बनता है? वेदरिंग पहले वो फॉर्मेशन को वो तोड़ेगा, बाद में वो इरोड कर देगा, इरोड करने के बाद में हमें मिलेगा डाइसेक्टेड प्लेट्यू। प्लेट्यू खत्म, अब प्लेन। नहीं नहीं, कैसे किया? मैंने खुद लेक्चर लिया आपका, आपका नहीं किया मैंने। बिकॉज वो सब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी और जितने भी मैंने थियरी पढ़ा है, ये सब मैंने पहले इसके लिए पढ़ाए थे ताकि ये सब आपको सीधे सीधे दिमाग में समझ में आ जाए। आप लोग को वो सब मैंने सिखाया, इसके लिए आप लोग को लग रहा है कि ये सब मैंने आप लोग को पढ़ाया है। अंदर का बड़ा है, ठीक है, वही तो, वो पहले बेसिक है। अगर आपको आगे का लैंडफॉर्म सीखना है तो पहले बेसिक वही है, टाइप्स ऑफ दैट व्हिचएवर वो जो मैंने तीन मैंने थियरी सिखाए थे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, फिर बाद में सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी, फिर बाद में प्लेट टेक्टोनिक थियरी। वो जो भी तीनों मैंने थियरी मैंने सिखाए थे, दे वाज द बेसिक। अगर वो समझ गए तो आगे का जितने भी लैंडफॉर्म है वो सब समझने में आप लोगों को आसानी हो जाएगी। तो इसके लिए आप लोगों को लग रहा है कि मैंने इससे पहले ही पढ़ा दिया, तो मैंने गए लेक्चर में माउंटेन एंड द टाइप फिल कर दिया था। आज प्लेट्यू एंड हो गया और प्लेन। अब जो ये मैं सिखाऊंगा ना, ये ओशिनोग्राफी, तो इसमें भी वो तीनों जो भी थियरी मैंने सिखाया था वो तीनों आप लोगों को ज्यादा हेल्प करेंगे उसके समझने में, ठीक है। जो भी अंदर के जो ओशिनोग्राफी है, समुद्र के अंदर के जो भी माउंटेन या प्लेन्स रहेंगे उसे समझने में ये तीनों थियरी बहुत हेल्प करेंगे। प्लेन्स, प्लेन्स मतलब क्या है? इन योर सिंपल वर्ड, सिंपल योर ओन वर्ड, यू से व्हाट इज द प्लेन? यू, रिवर फ्लो से जो इरोजन वो के फिर बाद में इट इज द फ्लड प्लेन। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लेन, ओनली प्लेन। उसकी वजह से बनता है ना। नहीं नहीं नहीं, वो फ्लड प्लेन बनेगा, प्लेन मतलब सीधा सीधा एक स्ट्रेट लाइन को मतलब ये तो वेरी पोर्टल लाइन See, because of it is only a plain land, okay? plain land. This nothing, plain मतलब एकदम सीधा। But there's nothing done on it. There is a content of this This was because of river and all. फिर I am saying it. Low lying relatively flat land surface with a very gentle slope, ठीक है। बीच में कुछ भी ऊपर नीचे नहीं रहेगा, very gentle slope. Most of the plain have been formed by the deposition of the sediment brought by the river, ठीक है। वो जो आप बोल रहे थे वो फ्लड प्लेन अलग और ये प्लेन अलग, ठीक है। फ्लड फ्लड, हाँ हाँ, वो जितने भी प्लेन्स बनते हैं वो सब ऐसे ही तो वो तो बनेंगे नहीं, वो कहीं ना तो कहीं से तो वो तो आएंगे, ठीक है। रिवर या विंड से वहां पर डिपोजिशन का ही काम होता है, ठीक है। वहां पर डिपोजिशन का काम होगा तभी वहां पर प्लेन तो बनेगा, ठीक है। बारिश बारिश की तो ये ज्यादा तो इरोड करेगा, ठीक है। और अगर कहीं पे बारिश आ रहा है और वहां पर वो मटेरियल लेके आ रहा है बाय व्हाट आई टोल्ड, बाय वाटर, ठीक है, और बाय विंड, ठीक है, और बाय विंड, ठीक है। यहाँ पर डिपोजिशन का काम ज्यादा रहता है, यहाँ पर इरोजन नहीं होता, यह डिपोजिशन डोमिनेट्स, ठीक है। यहाँ पर डिपोजिशन डोमिनेट करता है, यहाँ पर क्या क्या डोमिनेट करता है?
इरोजन क्या डोमिनेट करता है? ध्यान कहाँ है आपका? मैं इतना में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, ईयर डोमिनेट और डेपोजिशन, ईयर डोमिनेट डेपोजिशन। डेपोजिशन कहाँ पर डोमिनेट करता है? हाँ, प्लेन एरिया पे पक्का। बाय द एक्शन ऑफ विंड, मूविंग आइस और द विंड और टेक्टोनिक एक्टिविटी, यहाँ पर थोड़े से टेक्टोनिक एक्टिविटी से भी डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर इरोजन का मतलब कोई काम नहीं, ज्यादा डोमिनेंस कौन करेगा यहाँ पर? डेपोजिशन। टाइप्स क्या रहेंगे? टाइप स्ट्रक्चरल प्लेन, क्या समझ में आ रहा है? ऐसा नाम, नाम क्या सजेस्ट कर रहे हैं? ठीक है, परफेक्ट स्ट्रक्चर। ओके, मेनली फॉर्म बाय द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द सी फ्लोर और द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ओके, और द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, वो नॉर्मल वो स्ट्रक्चर वो कहाँ से बनाएगा? कॉन्टिनेंट, जब वो कॉन्टिनेंट का शेल्फ जब वहां पर वो अपलिफ्टमेंट होगा तब जाके वहां पर प्लेन बनाएगा, स्ट्रक्चरल प्लेन लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द मेजर कॉन्टिनेंट। ठीक है, इस टाइप का आप जो भी स्ट्रक्चरल प्लेन देखेंगे वो आपको बॉर्डर पे ही मिलेगा, बॉर्डर ऑफ मेजर कॉन्टिनेंट्स। या आपको ज्यादा बॉर्डर पे ही मिलेगा। बॉर्डर पे क्यों मिलेगा? बिकॉज ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, समझ में? ये ज्यादा कहां पर मिलेगा जानने? ये ज्यादा कहां पर मिलेगा? ये ज्यादा स्ट्रक्चरल प्लेन कहां पर ज्यादा पाए जाते हैं? हाँ, बॉर्डर पे। किसके बॉर्डर पे? हाँ, कोई भी बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान, बॉर्डर ऑफ मेजर कॉन्टिनेंट। ठीक है, ठीक है ना? नहीं, Even our peninsula is border of continent. Eastern coast, ईस्टर्न ये वाला कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट। सेकेंड वन इज नामी, नाम से ही पता चलेगा, इरोजनल, इरोजनल प्लेन्स formed by continuous and long time erosion of the upland। ठीक है, समझ में आ रहा है? डिपोजिशन ज्यादा डोमिनेट करते हैं, लेकिन यह इरोजनल प्लेन भी मिलते हैं। अगर कोई अपलैंड है तो उसको इरोड करके वो प्लेन भी बनाएगा। ठीक है, अगर डोमिनेंस के बारे में पूछा है तो यहाँ पर ज्यादा डोमिनेट डिपोजिशन ही करेगा हमेशा। लेकिन अगर अपलैंड को अगर वो इरोड करके वो अगर अपलैंड प्लेन जैसा बन जाएगा तो इसके लिए उसको बोलते हैं इरोजनल प्लेन और पेनी प्लेन और पेनी प्लेन। यहाँ पर ज्यादा डोमिनेट कौन करेगा? कंफ्यूज मत होना, ज्यादा डोमिनेट डेपोजिशन। लेकिन अगर हाई माउंट या हाई रिलीफ को अगर इरोजन करते करते वो अगर प्लेट बना दिया, एकदम प्लेन बना दिया, तो क्या बोला जाएगा? इरोजनल प्लेन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर डिपोजिशनल प्लेन एज द नेम सजेस्ट, डिपोजिशनल ग्लेशियर डिपॉजिट्स और ये यूपी वगैरह सब वो डिपोजिशन, मतलब जो भी रिवर के साइड में जो बड़े बड़े सिटीज है ना, ठीक है, वो ज्यादा डिपोजिशन से ही वहां के प्लेन बने।
ठीक है, वहां से वो पानी कुछ कहीं से और लाएगा, कुछ और मटेरियल डेब्रिस वहां पर वो झोंक देगा, वहां पर वो अपना डिपॉजिट करेगा। बहुत सारे एरिया, गैंगेटिक प्लेन में भी बहुत सारे हैं, ठीक है। यमुना साइड में मतलब जितने भी सिटी है ना, तो वो सब गैंगेटिक, मतलब वो वहां का जो वहां पर सब सेंडिमेंटी एरिया जो भी रिवर से आए हैं, क्योंकि पहले अगर वो सिटी यहाँ तक था तो अब वो बढ़कर सीधा सिटी यहाँ तक आ गया, ठीक है। और कहीं कहीं पर वो खुद पानी उसको कम कर रहा है, मतलब एक साइड पे वो डिपॉजिट भी कर रहा है, तो एक साइड पे वो उसको इरोड भी कर रहा है। इसके लिए तो देखिए ना, कभी कभी वो जब ज्यादा बारिश आ रहा है तो ये टीवी में आप लोग को दिखाई देता है ना कि वो घर सीधा पानी में ऐसा डूब जाता है। क्यों? क्योंकि वो नदी के कभी कभी वो बहुत पास रहता है, तो उसको वो कभी कभी इरोड भी करके लेके जाता है, और कभी कभी वो डिपोजिशन से वो बड़े बड़े सिटी भी वहां पर साइड में फेमस फेमस वो बसा देते हैं, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। बट but the most of plains are formed due to deposition of sediment brought down by the river or by the action of wind, moving ice or tectonic activity, ठीक है। प्लेन पे खत्म, अब स्टार्ट करेंगे अपना ओशियनोग्राफी। यहाँ पर हमारा जियोमॉर्फोलॉजी खत्म हो गया, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी एंडेड। समझ में आया ना? ये तो बोला कि जियोमॉर्फोलॉजी खत्म हो गया और मुझे कुछ समझ में आया ना? ओशियनोग्राफी में रहेगा। लेकिन एनसीईआरटी में रिलीफ और ये सब दिया है, उसमें सिर्फ वो अंदर का जो भी सी माउंट है, मतलब बेसिक बेसिक देके रखते हैं। इतना डीप में वो नहीं दिया। अगर आपको डीप नहीं जाना है तो गो फॉर द स्टैंडर्ड बुक। बट दिस इज इनफ। अगर ऑप्शनल है किसी का ज्योग्राफी, अगर ऑप्शनल है देन वन शुड गो फॉर द स्टैंडर्ड बुक। तो दिस इज इनफ, मोर देन इनफ। हाँ, लेकिन वर्ल्ड मैप पे ध्यान देना, क्योंकि यूपीएससी ज्यादा क्वेश्चन या एमपीएससी ज्यादा मैप पे क्वेश्चन पूछता है, और वाइल्ड लाइफ वाइल्ड पार्क, ठीक है, वो पार्क का ज्यादा। हाँ, और ये अगर यहाँ से अगर ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन आए भी, तो यूपीएससी और एमपीएससी का क्या ट्रेंड बन गया है कि वो ज्यादा क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चन पूछते हैं। क्लाइमेटोलॉजी, और कहीं पर नया नया अगर कहीं पर वॉल्केनो आया, ठीक है, तो वो कौन से टाइप का वॉल्केनो था, तो उसके फीचर पे उन लोग क्वेश्चन पूछे, ठीक है। जो भी करंट में चल रहा है तो उसके बैकग्राउंड में जाके उन लोग क्वेश्चन पूछते हैं। ज्यादा वेटेज उन लोग ज्यादा देते हैं ये क्लाइमेटोलॉजी को, ठीक है। ओशियनोग्राफी, तो ओशियनोग्राफी में एक कोरल रीफ है, तो उसके ऊपर पहले पूछते थे। और अगर इसमें भी पूछा ओशियनो ये क्लाइमेटोलॉजी में, तो ज्यादा ला नीनो, यल नीनो, ये सब के ऊपर ज्यादा उन लोग क्वेश्चन पूछते ही। तो वो सब मैं साइड बाय साइड में पढ़ाते जाऊँ। क्या जब भी करंट में कुछ भी होगा तो वो करंट अफेयर पे क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, वो उसके बैकग्राउंड में जाके वो क्वेश्चन पूछेगा, वो टॉपिक। हाँ, अगर कहीं पर अगर अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, तो ये नहीं पूछा कि व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट अर्थक्वेक और क्या हुए कहाँ पर आया, वो उसके फीचर्स में जाके वो पूछेगा, उसके बैकग्राउंड में जाके वो क्वेश्चन पूछेगा। ये हो गया फ्रेंड। और ज्यादा किस पे ध्यान देना? मैपिंग पे ज्यादा ध्यान देना। मैपिंग है इंपॉर्टेंट सिटीज एंड प्लेसेस विच आर इन न्यूज। जो भी इंपॉर्टेंट सिटीज और प्लेसेस हैं जो भी ज्यादा न्यूज में रह रहे हैं, उसके ऊपर भी ध्यान देना, क्योंकि 4-5 मार्क्स का ये जो न्यूज
इंपॉर्टेंट कैसे थे न्यूज एंड मैपिंग के ऊपर चार पांच क्वेश्चन आते ही आते, मतलब 6 से 8 मार्क इधर से ही आते हैं। 71% of Earth surface is water, ठीक है, जिसमें से 97% इज ocean, ठीक है, और ओनली 3% इज फ्रेश वाटर, और यू कैन से ड्रिंकिंग। यहाँ पर मेजर रिलीफ फीचर्स, ठीक है, मतलब ओशन के अंदर क्या क्या पाए जाएंगे, ठीक है, व्हाट आर द फीचर दैट इज इन द डीप ऑफ द ओशन, ठीक है, जो भी बाहर मिलेंगे प्लेट्यूज, प्लेन, वॉल्केनिक इरप्शन वाला माउंटेन, वो सब ओशन के अंदर भी मिलेंगे, ठीक है, हाँ वो सब मिलेंगे। वो पता कैसे चला, वो सबमरीन जब वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी ने जब उसका इन्वेंशन किया था सबमरीन का, तब वो पता चला कि हाँ जैसा ऊपर है वैसा समुद्र के अंदर भी है। सबसे पहला है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, सेकेंड वन इज कॉन्टिनेंटल स्लोप, थर्ड वन इज कॉन्टिनेंटल राइज एंड फोर्थ वन इज अपाइकल प्लेन, ठीक है, अपाइकल प्लेन और डीप सी प्लेन। आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन। हाँ एक मिनट, सबसे पहले मैं ड्राइंग ही बना देता सबसे पहले मैं ड्राइंग ही बना देता हूँ, मैप ही बना देता हूँ, so that you will be fine to understand it. हम्म
This is the proper map of inside of ocean. ठीक है, ये प्रॉपर मैप है ओशियन का. ठीक है, तो वो मैग्मा की बाजू वाला क्या है? मैग्मा के बाजू वाला कौन सा? नीचे वो बनाया ये राइट साइड. ये इट इज नथिंग बट ऐसे ही, मतलब मैंने लैंडफॉर्म मैंने बना दिया और इसके ऊपर जो है ये लाइन, ये आइलैंड, और ये कैसे बना दिया, तो ये अगर नहीं गिरे फिर अच्छा था वो नो तो इसका घर था मुझे उधर मत जाना। पानी के नीचे ये वाली अभी सब आया. जिससे है ना कॉन्टिनेंटल शेल्फ. ठीक है, इट इज द सी वर्ड एक्सटेंशन. कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहां पर है? यहाँ पर ये. ठीक है, दिस पार्ट इज द कॉन्टिनेंटल शेल्फ. ठीक है, इट इज द सी वर्ड एक्सटेंशन. ऐसा बोला जाता है कि वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज मच वाइडर देन दैट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट. ठीक है, जो भी ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये वेस्टर्न कोस्ट में कंपेयर टू ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट में ज्यादा वाइडर है कंपेयर टू ईस्टर्न कोस्ट. व्हाई? बिकॉज ऑफ द एक्सटेंशन, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा एक्सटेंशन मिल रहा है और ओशियन को. ठीक है, यहाँ पर शोर लाइन मतलब जहाँ से प्लेन है वहां पर उससे ज्यादा एक्सटेंशन मिल रहा है वेस्टर्न कोस्ट में एज कंपेयर टू ईस्टर्न कोस्ट. लेकिन अगर इग्नोस का नोट्स पढ़ोगे, इग्नोस का टेक्स्ट बुक, तो उसमें इसका बिल्कुल रिवर्स दिया है कि वेस्टर्न कोस्ट इज हैव द मोर एक्सटेंशन एज द ईस्टर्न कोस्ट इज मोर एक्सटेंशन देन द वेस्टर्न कोस्ट. तो ये कंफ्यूजन है. एनसीईआरटी में बोला गया है वेस्टर्न कोस्ट इज मोर एक्सपांड देन द ईस्टर्न कोस्ट, और इग्नोस में बोला गया है कि ईस्टर्न कोस्ट इज द मोर एक्सपांडेबल देन द वेस्टर्न कोस्ट. तो ये दो पॉइंट्स इग्नोस पे है, ये कौन सा राइट है एनसीईआरटी का, बट इट इज नोन एज द कॉन्टिनेंटल शेल्फ. ठीक है, ज्यादा तो हम लोग एनसीईआरटी का ही लेंगे. ठीक है, हाँ देखिए, हम लोग जैसे समंदर में घुसते तो वहां से ही तो सीधा डिप नहीं जाएंगे ना. तो जहां तक हम लोग जा पाते हैं या जहां तक एक प्लेन लैंड है तो उसको ही बोलते हैं कि नथिंग बेटर. हाँ, ये एक मतलब यहाँ तक आदमी जा सकता है. ठीक है, जा सकता है, उसको बोलेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ. ठीक है, फिर बाद में और एक कोरल रीफ. ठीक है, इट इज द अंडर वाटर और द मरीन इकोसिस्टम. ठीक है, ये किससे बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट से. ठीक है, कोरल रीफ मतलब वो ज्यादा करके जब रात के अंदर में वो वहां से वो लाइट भी बहुत ज्यादा आता है, वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो ये एक मतलब फिश के खाना भी रहता है. ठीक है, और अगर यहाँ पर केमिकल कंटेंट, मतलब अभी तो आप देख रहे हैं कितना केमिकल जा रहा है, तो अगर इस पे केमिकल पे इफेक्ट गिरा तो इट विल बी इफेक्ट कोरल ब्लीचिंग. कोरल ब्लीचिंग भी होता है ना, अगर ज्यादा यहाँ पर केमिकल का फॉर्म आ गया तो उसको सीधा वो ब्लीच कर देगा, उसको खराब कर देगा कोरल रीफ. और कोरल रीफ ज्यादा कंट्रीज में इट इज द टूरिस्ट अट्रैक्शन. कोरल रीफ जब रात के अंधेरे में वहां से वो समंदर से वो लाइट निकलता है और ब्लू कलर का वो लाइट निकलता है, वहां पर ऑर्गेनिज्म, इट इज द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट इज मेनली मेड ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, तो जो कोरल रीफ रहता है ना, कोरल रीफ हमें यहाँ पर ही देखने को मिलता है. ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ज्यादा देखने के लिए हम लोग को मिलता है. रिच इकोनॉमिकल एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस. रिच इकोनॉमिकल मतलब यहाँ पर ज्यादा मछली भी आएगी. अगर यहाँ पर कोरल रीफ था तो ज्यादा मछलियों का भी भोजन रहेगा, एंड इट विल बी द बेस्ट फॉर रिच फॉर इकोनॉमिकल एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस. ठीक है, ये जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इसका क्या क्या रहता है इंपॉर्टेंट? कोरल रीफ तो रहते हैं दो मेन, इकोनॉमिकल एंड इकोलॉजिकल. ठीक है, इट यहाँ पर इट विल बी द ग्रोथ ऑफ द मिलियन प्लैंकटन. प्लैंकटन मतलब देयर आर आल्सो
मीन्स एक मिनरल टाइप के रहते, एक ऑर्गेनिज्म रहते, ठीक है, जिसको खाने के लिए फिश डीप सी से ऊपर आती है, ठीक है। जब अपवेलिंग, आगे में सिखाऊंगा आपको अपवेलिंग जोन क्या होता है। जब भी पानी अंदर से जब ऊपर आता है ना, जब भी वो पानी नीचे से ऊपर आएगा तो अंदर का जो भी मिनरल या ऑर्गेनिज्म है जिसको बोलते हैं प्लैंकटन, तो उसको खाने के लिए फिश बहुत जल्दी आती है। डीप वाटर से भी फिश वहां पर यहाँ पर पहुंच जाएंगी इसको खाने के लिए, तो उसको बोलते हैं प्लैंकटन। मिलियंस ऑफ प्लैंकटन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो दिस गिव टू द ग्रोथ फॉर द फिशिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। क्या प्लैंकटन, प्लैंकटन आर सम मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स। और ये मतलब जो भी छोटा छोटा रहेगा, वो तो मैंने बोला मिनरल्स, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब हाँ छोटा छोटा फिश ले लो या जो भी और भी मिनरल्स या और भी मिनरल्स जैसे कि ऑर्गेनिज्म जो भी मतलब समुद्र के अंदर से आएंगे यहाँ पर। जब भी अपवेलिंग जोन आता है तो उन लोग को अंदर से वो बाहर बाहर की तरफ फेंकता है और इन लोग को खाने के लिए डीप वाटर से जो भी फिश रहता है वो इनके पीछे आते हैं, ठीक है। तो इस इससे क्या होता है, फ्लोरिश ऑफ फिशिंग इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये इसके कारण ये होता है। मरीन फूड आर ऑलमोस्ट कॉमन इन द एंटायर कॉन्टिनेंटल शेल्फ। यहाँ पर मरीन फूड काफी मतलब यहाँ पर मरीन फूड काफी मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। 20% ऑफ द वर्ल्ड पेट्रोलियम एंड गैसेस आर कम फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। 20% ऑफ द वर्ल्ड पेट्रोलियम एंड गैसेस कम फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ओके। अब अगला क्या है, continental slope. It is nothing but the connection between continent and abyssal plain, ठीक है। It is like a slope like structure, ठीक है। तुरंत continental shelf के बाद में slope आएगा, ठीक है। It is the slope like structure. It is here is the very little deposit. यहाँ पर तो डिपोजिट हो ही नहीं सकता। Why? Because it is the slope. और डिपोजिट कहाँ पर पाया जाएगा, यहाँ से पाया जाएगा ना डिपोजिट। डिपोजिट से यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ पर तो पूरा स्लोप है, तो यहाँ पर डिपोजिशन डोमिनेट यहाँ पर नहीं कर सकता। कहाँ पर होगा, इसके फुट से चालू होगा डिपोजिशन, या जो भी डेब्रिस जो भी रहेंगे वो इसके फुट से डिपोजिट होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ नहीं, सी लाइफ इज ऑलमोस्ट लेस हियर। यहाँ पर सी लाइफ जितने भी रहते हैं वो बहुत लेस रहते हैं। एंड डिपोजिशन ऑफ वही डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट इसके फुट से चालू होगा, यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पर सी लाइफ बहुत कम रहता है। सी लाइफ कहाँ पर ज्यादा रहेंगे, कॉन्टिनेंट शेल्फ में, और यहाँ पर सी लाइफ कम रहते हैं। और यहाँ पर डिपोजिशन नहीं हो सकता। डिपोजिशन कहाँ से होगा, उसके फुट से, ठीक है, उसके, ठीक है। यहाँ पर इरोजन या मान लो कि वहां पर एक फुट है, ठीक है, यहाँ पर कुछ ठहर ही नहीं सकता ना, कैसे, ठीक है। सी लाइफ यहाँ पर बहुत लेस है, बहुत लेस है, यहाँ पर ज्यादा है। हाँ तो होता रहता है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ ठहर ही नहीं सकता, तो इसके लोग कहाँ पर आगे ठहरता है, उसके फुट के नीचे, ठीक है, जिसको आगे बोलेंगे हम लोग एबिसल प्लेन, abyssal plane और डीप सी प्लेन, डीप सी प्लेन, ठीक है। डीप सी प्लेन, डीप सी प्लेन, इट इज द कॉन्टिनेंट यार। मतलब ये तो एक लैंड का एक्सटेंशन है ना, ये तो एक लैंड का एक्सटेंशन है जहां तक हम लोग आसानी से हम लोग जा सकते, पहुंच सकते। फिर हम यहाँ से तो स्लोप चालू होगा ना, कॉन्टिनेंटल स्लोप। हाँ ये सब, हाँ ओशन इज डेपर देन सी, बट इसका नाम ही है अबाइसल प्लेन, का नाम ही है, इसका नाम ही है डीप सी प्लेन। इसका ज्योग्राफी में नाम ही है डीप सी प्लेन, इसका नेम ही है डीप सी प्लेन। और यू कैन से सिंपली या इट इज दिस ऑल इज द मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर, ठीक है। ओशन के अंदर जो भी ये सब उसका मैपिंग है, ये है अबाइसल
प्लेन, ठीक है, जहां पर सेंडिमेंट का जमा जमा होते, ठीक है। अबाइदल प्लेन इज द एक्सट्रीमली फ्लैट एंड द फीचरलेस प्लेन्स ऑन द डीप ओशन फ्लोर, ठीक है। लेवलेस एरिया ऑफ द अर्थ, यहाँ पर मतलब कुछ भी ज्यादा ऊपर नीचे कुछ नहीं रहता, इट इज द एकदम सिंपलेस्ट, ये मतलब टाइप का ये ओशन के अंदर का ये प्लेन, ठीक है, जहां पर सेंडिमेंट जमा होते हैं। यहाँ पर भी क्या, यहाँ पर क्या डोमिनेट होंगे, डिपोजिशन या डिपोजिशन ना, डिपोजिशन। इट कवर द मेजर पोर्शन ऑफ ओशन फ्लोर, ये ओशन फ्लोर का ये मेजर पोर्शन ये कवर करता है। और इसके अगर आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा, सी माउंट, ठीक है, रिजेस और आइलैंड और ग्योर्ड, ठीक है। द सेंडिमेंट विच आर फॉर्म फ्रॉम द रिमेनिंग ऑफ द लिविंग थिंग आर कॉल्ड ओज, ठीक है, आर कॉल्ड ओज। जो भी सेंडिमेंट यहाँ पर फॉर्म होंगे और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिमेनिंग से फॉर्म होंगे तो उसको बोलेंगे ओजेस, ठीक है। हाँ हाँ, वो मतलब जो भी सेंडिमेंट आएगा वो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिमेनिंग से आएगा सेंडिमेंट, और उससे रिमेनिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिमेनिंग से जो भी सेंडिमेंट आएगा वहां पर इकट्ठा होगा तो उसको बोलेंगे ओजेस, ठीक है। हाँ हाँ, सब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर डोमिनेट करेगा डिपोजिट, यहाँ पर डोमिनेट करेगा डिपोजिट ही यहाँ पर डोमिनेट करेगा। अनदर टाइप ऑफ द सेंडिमेंट इज, कौन सा सेंडिमेंट रहेगा, रेड क्ले which come from the volcanic origin are made up of the tiny particle brought by the wind or river। एक तो रहेगा ओजस, ओजीएस का सेंडिमेंट रहेगा, और एक रेड क्ले जो भी विंड और वाटर से यहाँ पर आएंगे उससे ये फॉर्म हो जाएगा अबाइदल प्लेन, ठीक है। आगे आगे चलते हैं, अब क्या आएगा, सबमरीन रिजेस, जिसको बोलते हैं ओशियनिक माउंटेन, ठीक है। सबमरीन रिजेस उसको क्या बोलते हैं, हाँ, कहाँ का माउंटेन, ओशन के अंदर का माउंटेन को क्या बोलते हैं, सबमरीन रिजेस। it is occurring near the middle of the ocean and it is also called as the mid oceanic ridge। it is the frequent earthquake और लावा और वोल्केन, मतलब वहां यहाँ पे it is the frequent earthquake और लावा, ठीक है। यहाँ से ज्यादा मैंने समझा था ना आप लोग को, जब अंदर से मैग्मा बाहर आएगा, वो कौन सा करंट था, करंट कौन सा था, कन्वेंशनल करंट जब अंदर चालू रहेगा, जब ऊपर से जब वो राइजिंग होगा तब यहाँ पर वो जो भी प्लेट रहेगा उसको फाड़ देगा, एक दूसरे को वो दूर करेगा और तब जाके वो बनने तो क्या बन आएगा, मिड ओशियनिक रिज। यहाँ से ही इट इज द फ्रीक्वेंट ऑफ अर्थक्वेक और यू कैन से वोल्केनो। देखो कभी तो यहाँ पर है ना माग्मा, यहाँ पर है ना माग्मा का एक्सप्लोरेशन। लावा अगर ठंडा होता तो ये इतना वॉयलेंट होता ही नहीं, मतलब यहाँ से इसे कुछ मतलब नहीं, लावा तो यहाँ पर, हाँ अगर वो बाहर निकल गया तो वो कूल डाउन तो होगा, लेकिन वो अगल बगल का जो भी इकोसिस्टम है वो पानी को भी गर्म करेगा, हाँ वो पानी को भी गर्म करेगा और वहाँ के जितने भी लिविंग थिंग है वो वहां से छोड़ के भागेंगे वो, हाँ वो भागेंगे, वो लावा इतना इफेक्टिव रहता है, वो जल्दी वो पानी को गर्म नहीं करेगा वो। ओके, इसका मिड एटलांटिक रिज इसका एक एग्जांपल है, ठीक है। मिड एटलांटिक रिज इज द लार्जेस्ट कंटिन्यूअस सबमर्ज
mountain ridge which run from the north to south in the Atlantic Ocean. ये सबसे longest mid oceanic ridge है जो नॉर्थ से साउथ तक भागता है इन Atlantic Ocean, है ना? सही है? बहुत ज्यादा it is the highest mid oceanic ridge. ये बहुत दूर तक वो भागता है, नॉर्थ से साउथ तक तो बहुत दूर तक भागता है मिड ओशियनिक रिज। हाँ हाँ यूरोप के ऊपर से लेके पूरा एटलांटिक ओशियन में, एटलांटिक, हाँ एंटार्क्टिक ओशियन के अंदर नॉर्थ से लेके साउथ तक ये बहुत लंबा भागता है, इसको बोलते हैं मिड एटलांटिक रिज, मिड एटलांटिक रिज। तो अब क्या आएगा? अब आएगा आइलैंड और यू कैन से सी माउंट, सी माउंट एंड ग्योट, सी माउंट और ग्योट। सबमर्ज वोल्केनो विद अ टॉप आर कॉल्ड अ सी माउंट। ठीक है, अगर वोल्केनो अपने आप को एक्सप्लोड नहीं कर पाए, वो एक के दूसरे ऊपर ही एक वो सबमर्ज हो गए, एक के ऊपर एक वो कोलैप्स हो गए, तो वो कुछ तो बनाएगा, नहीं कुछ तो बनाएगा, तो उससे ही बनता है सी माउंट। ठीक है, इफ समटाइम दे आर राइज अबाउट द सी देन इट इज अ आइसोलेटेड आइलैंड। ठीक है, ये एक आइसोलेटेड आइलैंड रहेगा, ये कुछ नहीं है, ये कोलैप्स जो भी सबमर्ज वोल्केनो अगर वहां पर रहेगा और वो ज्यादा अपने आप को बढ़ा नहीं पाएगा तो उसको बोलेगा ये भी एक सी माउंट ही है, ये भी एक, ये जो आइलैंड में यहाँ पर दिखा रहा हूँ इट इज अ सी माउंट बट दिस इज द अबाउ सी लेवल। तो जो पार्ट जो अबाउ सी लेवल के ऊपर गया है उसको बोलेंगे आइलैंड, आइसोलेटेड आइलैंड, क्योंकि इसके अगल बगल में आपको आइलैंड है ही नहीं। और अगर अगल बगल में आइलैंड रहेगा तो इसका मतलब क्या है? वही मतलब अगर ज्यादा आइलैंड रहेंगे अगल बगल में एकदम तो बहुत वहां पर बहुत ही वोल्केनो बहुत जल्दी जल्दी आया है, बहुत जल्दी जल्दी लावा बाहर आते आते कंटिन्यूस यहाँ साल बहुत टाइम लगता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आता है लेकिन ये इफेक्टिव नहीं रहता, वो एक के ऊपर एक वो गिर जाता है, सबमर्ज बोलते हैं। ठीक है, सबमर्ज बोलते हैं ना, हाँ, तो वो अपने आप को इतना ज्यादा वो पास नहीं कर पाता तो उसको बोलते हैं सी माउंट, और अगर वो ऊपर लेके गया तो उसको बोलते हैं आइलैंड। ठीक है, कैल्डेरा वोल्केनो। ठीक है, अच्छा, तो अगर ज्यादा अगर एक के बाद एक एकदम लाइन में अगर वोल्केनो ये आइलैंड अगर मिला तो उसका मतलब क्या है? हाँ, मतलब एकदम लाइन में अगर यहाँ पर भी एक आइलैंड है, यहाँ पर वो क्यों फॉर्म होगा? अगर ये सी है, ठीक है, ये सी है, यहाँ पर भी एक आइलैंड है, यहाँ पर भी एक आइलैंड है, यहाँ पर भी आइलैंड है, यहाँ पर भी आइलैंड, तो एक मतलब ये ग्रुप बन गया एक आइलैंड का। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ एक ही है, यहाँ पर इतने सारे क्यों होते हैं? ये भी एक बड़ा रहेगा बट वो फिर से भूल गए ना थियरी, फिर से थियरी भूल गए। जब ओशियनिक प्लेट ना, जब ओशियनिक प्लेट और ओशियनिक प्लेट जब साथ में आएंगे तो दोनों क्या रहेंगे? बोथ विल बी द बेसाल्टिक इन नेचर। ठीक है, तो जो भारी रहेगा वो सब्डक्ट हो जाएगा, वो दब जाएगा नीचे। अगर एक क्या बोलूं, अगर कोई अभी नया ओशियनिक प्लेट, अभी उसका जन्म अभी नया, ठीक है, और एक ओशियनिक प्लेट बहुत जुना है, तो दोनों का डेंसिटी एक कैसे हो? नहीं हो सकता,
तो एक जो जूना है वो उससे भारी रहेगा, और जो भारी रहेगा वो सबडक्ट करेगा। जब वो सबडक्ट करेगा तो वहां से वो गलना चालू होगा, बिकॉज ऑफ हीट इनसाइड। वो फिर से गलेगा, फिर से वहां पर केमिकल फॉर्मेशन बनेगा, और जो केमिकल फॉर्मेशन बनाएगा इट इज द वेरी वायलेंट। वो जैसे ही अंदर जाएगा वैसे ही वो ऊपर की तरफ फेंकेगा। जैसे कि अगर ये यहाँ पर अगर सब्जेक्शन हुआ है, ठीक है, इतने दूर में हुए और ये सब यहाँ तक गल गए, ये पूरे केमिकल बन गए, ये इतने वायलेंट रहते हैं कि ये अंदर ये रह ही नहीं सकते, ये ताबड़तोड़ ये ऊपर फेंकेंगे। तो इसके लिए हमको देखने के लिए मिलता है ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है। तो इसके लिए मैंने बोला था वो थियरी को याद रखना, इट इज वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द मैप ऑफ द ओशियन, ठीक है, समझ में आया? ऑफकोर्स अगर वो सी लेवल के ऊपर रहेंगे, अगर वो सी लेवल के ऊपर तक वो जाके बनाएगा, और सी लेवल उसके ऊपर आएगा भी क्या रहा है, समंदर के बीच में जमीन तो ही रहता है, ठीक है। तो अगर वो सी लेवल के ऊपर तक चलेगा तो तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, इट इज द सी माउंट, इट इज द सी माउंट, बट इट इज कॉल्ड आइलैंड बिकॉज इट इज अबाउ द सी लेवल। ये सी माउंटेन ही रहते हैं, लेकिन ये बाहर जब निकलते तो सिर्फ बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं आइलैंड, ठीक है। सी माउंट, अगर सी माउंट, ये भी सी माउंट ही है, अगर सी माउंट फ्लैटेड ऐसे हो गए, फ्लैटेड, तो उसको बोलेंगे ग्योट। ग्योट इज नथिंग बट इट इज आल्सो अ सी माउंट, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं रहेंगे, इट विल बी फ्लैटर, और फ्लैट के ऊपर आएगा क्या 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 रहेगा, वो फ्लैट, फ्लैट को क्या बोला जाएगा, ग्योट, ठीक है। अब काइंड ऑफ प्लेट्यू, ये वो ओशन के अंदर का ही रहता है, बट इट इज नॉट अ फ्लैट, वो इतना भी बहुत बड़ा रहेगा। रहेगा, लेकिन उसका नाम है ग्योट, ठीक है। इतना समझ जाना, वो एक ओशन का फ्लैट मान लो, ये ओशनिक ट्रेंच, डीपेस्ट, डीपेस्ट, ठीक है, डीपेस्ट है मरियाना ट्रेंच, डीपेस्ट ओशनिक ट्रेंच, ये सबसे डीप रहता है ओशन का, ओशन का ये सबसे डीपेस्ट पार्ट रहता है, ठीक है। ओशनिक ट्रेंच, ओशनिक oceanic deep are the oceanic deep are the deepest part of the ocean. It is known as the submarine trenches found in the area of volcanoes and the earthquake activities, ठीक है। जब यहाँ पर ज्यादा वोल्केनो आएगा तभी तो यहाँ पर लैंडफॉर्म होगा, जब यहाँ पर ये लैंडफॉर्म हो रहा है तभी तो ये यहाँ पर नीचे जा रहा है, नहीं तो ये भी यहाँ पर प्लेन एरिया होता ना, नहीं तो ये भी तो यहाँ पर प्लेन एरिया होता, ठीक है। जब यहाँ पर वोल्केनो हुआ है तभी तो ये यहाँ पर ये उठा है, और जब ये यहाँ पर उठा है तभी तो इसको यहाँ पर इसने शॉलो बनाया, इतना ही वो इतना उसने डीप बनाया, नहीं तो वो बना पाता नहीं ना, बना पाता नहीं ना। बेसिस Pacific Ocean has the largest number of trenches. Marina Trench in the Pacific Ocean is the deepest known part of the world. ठीक है, Marina Trench is the deepest. कहाँ पर है ये? Pacific Ocean. तो अभी नहीं अभी है ना, अभी ओशनिक वेव है, ओशनिक टाइड है, फिर बाद में सैलिनिटी, ओशन का सैलिनिटी है, मतलब एक तरह से बोल सकता हूँ कि ओशियन का मैप खत्म हो गया, अब ओशनिक वेव, ओशनिक टाइड, सैलिनिटी, ठीक है। और सैलिनिटी को कौन ज्यादा इफेक्ट करता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फैक्टर विच इज अफेक्टिंग द सैलिनिटी ऑफ द ओशन, 3 से 4 बार क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। ड्राइंग कर रही है ये
ये तो पेंशन अभी उधर नहीं सही मन लगा टीचर को हो गया ना सर उधर से रखने को और इधर टीचर को कंफर्टेबल है ना सर आपको भी कंफर्टेबल और फिर स्टाफ भी रहेगा तो उनको भी उनको एक प्रॉब्लम है चाहिए एक हफ्ते में उनका नहीं है वो इंडोनेशिया का ये था सुनामी था सुमात्रा अभी वो अपने टॉपिक पे रिलेटेड था तो ज्यादा समझता है Okay. अब आएगा ऑस्ट्रेलियन वेव। ऑस्ट्रियन वेव, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ अगेन ईयर वेव, एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और एक वर्टिकल मूवमेंट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में ऑशियन वेव, ऑशियन करंट सर्कुलेशन, और वर्टिकल में टाइड, अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग, ठीक है। लिख देता हूँ, ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ड्रॉ इसी करो। इसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ, 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 इसको क्या बोलेंगे? कुछ बोले प्रो एंड ये अपर साइड को क्या बोलेंगे? क्रिस्ट, ठीक है। एंड दिस इज द
दिस इज द सी लेवल। मैं बताता हूँ मैं करंट आगे है करंट, डोंट बी टेंशन। आगे क्यों है? हाँ, आई विल एक्सप्लेन यू ना बाबा। वेव करंट अफेयर ऊपर क्या करंट अफेयर पूछेंगे वो, तो समझ नहीं सर, आप करंट का बात कर रहे थे उसमें करंट की नहीं, ये ये वेव और ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। जो नीचे का वो शेप रहेगा वेव का उसको क्या बोलते हैं? फ्लोट। और ऊपर का क्रेस्ट। और ये क्या है? सी लेवल। ठीक है, नाइन से शोइंग यू वही जो ऐसा ऐसा रहता है ना, वो गोला गोला अंदर का, जो ऐसा समंदर का लहर आएगा और ऐसा पूरा गोल गोल होके गिरता है, सीधा गोल होके गिरता है। ठीक है, सीधा ऐसा गोल होके गिरता है। ये हाँ हाँ, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीलेशन। ठीक है, ऑक्सीलेशन। और एक होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब एकदम सीधा जाएगा, एकदम सीधा जाएगा। वो नहीं नहीं वेव रहता है लेकिन वो इतना नहीं रहेगा, एकदम मतलब देखा होगा कि एकदम सीधा जा रहा है वेव। ठीक है, इतना वो कुछ हरकत नहीं करता। ठीक है, तो उसको बोलेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वेव में भी दो पार्ट कौन थे? पता, हॉरिजॉन्टल वेव में दो पार्ट। फर्स्ट वन इज ओशियन वेव, सेकेंड वन इज ओशियन करंट सर्कुलेशन। ठीक है, ओशियन करंट सर्कुलेशन। वर्टिकल मूवमेंट में टाइड अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग। ठीक है, वेव आर एक्चुअली एनर्जी, नॉट अ वाटर that move across the ocean surface. It is correct. Wave is actually a energy. It is not a water which move from one place to another. Formation. Formation कैसे होता है? Wind are the main energy sources of wave. Wind create a friction. Wind create a friction on the earth surface and it cause the movement of water in a wind direction. ठीक है, wind is the main sources of energy of the wave. It create the friction. ठीक है, फ्रिक्शन डालेगा और वो विंड जो डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में अपने वेव को लेके वो जाएगा। ठीक है, फिर बाद में आता है वेव मोशन। वेव मोशन वेव मोशन वही द वेव मोशन किसी पार्ट में होगा? ये दो पार्ट में होगा। ये ऑक्सीलेशन और एक ये सॉरी एक ये ट्रांसलेशन। ठीक है, व्हेन द वेव passes water molecule flow in the circular motion। उधर उधर की पर यहाँ पर देखो oscillation. When the wave passes, the water molecule flow in the circular motion. ठीक है, circular और elliptical motion. ठीक है, अब so it is known as the oscillation. Oscillation wave. Oscillation का मतलब गोला गोला, elliptical motion और circular motion of wave। ठीक है, और ट्रांसलेशन का मतलब मूव फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ वेव इन द हॉरिजॉन्टल मोशन। बस इतना ही है इसका। ठीक है, इसका फीचर क्या है? फीचर हाईएस्ट पॉइंट इज नोन एज द हाईएस्ट पॉइंट इज नोन एज द क्रेस्ट एंड दिस लोअर पॉइंट इज नोन एज द हाँ THROUGH. Is it true, sir? Yeah. No, it is not. Yes. TRO. TROUGH.
रफ, जो लो रहेगा उसको बोलेंगे रफ, और ऊपर का क्रेस्ट, ठीक है। वो नहीं कि एंटी सिंक्लाइन एंड एंटी सिंक्लाइन, वो अलग है, क्योंकि वो फोल्डिंग है ना, और ये वेव है, इसके लिए मारते हैं, और क्या। ठीक है, तो ऑशियन टाइप का मैकेनिज्म क्या रहता है, वो बनता कैसे? एक तो ग्रेविटेशनल एट्रैक्शन और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ये दो रहेंगे, ठीक है। periodical rise and fall of water level in ocean and sea once or twice a day due to the gravitational pull of moon is called as the tide, ठीक है। ग्रेविटेशनल पुल जो है, ठीक है, हर एक पीरियड के बाद एक या दो टाइम पे जब भी वो ग्रेविटेशनल पुल, वो मून का ग्रेविटेशनल पुल इफेक्ट करेगा, तब आएगा टाइड, ठीक है। Tide occurs due to the imbalance between the various forces acting on the ocean water at the point at time, ठीक है। various forces मतलब यहाँ पर कितने फोर्स लगते हैं? दो फोर्स लगते हैं। फर्स्ट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड फोर्स इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, which is created due to the rotation of earth, ठीक है। इसका मैकेनिज्म क्या रहेगा, समझ में आ रहा है? इसका मैकेनिज्म क्या रहेगा? The side of Earth which is closest to the moon has the strongest gravitational attraction. Of course, जो भी अर्थ का साइड जो मून के एकदम करीब रहेगा, वहां पर towards the moon, while the